Right, I have started recording of this class so that that would be available on YouTube channel and you can watch this video over and over again. Right. I was telling you that I have already shared the course outline with your CR. I've sent him via WhatsApp, so he would share the course outline with entire of the class. So you can have your course outline from your CR. You know, the student portal is not that working, right? Otherwise, I can upload course outline on your portal. You can download it from that also. This was the updated course outline, consumer behavior, and right, if you've already gone through the principles of marketing management, then it would be easy to understand this course because these were the prerequisites. Okay. I have revised this course outline on, 22nd September. So this is the latest one and revised one. This is little introduction of the course. This course is all about what and how would we learn about this course and why is it important to learn or study consumer behavior. This one, so you can study it in details because this is with your CR. These are few of the course objectives to gain a better understanding of yourself as a consumer, right? So these are the bookish things, so you can study it yourself and you can have it from your CR, right? Let me go further. These are the learning outcomes. Understand and discuss critically how consumers think, feel, reason, and select between different alternatives. So this is how we learn out of this course. The course is very colorful. I mean, you people already know because all of us, we are consumers and we have to make different buying decisions every day. So this is something important. Class format and weekly work plan. This is really important. Consumer behavior is a concept-based and discussion-driven course. Thus, the vast majority of our classes would be focused on concepts, articles, and class discussions. Right? इसमें वो बता ही रहा है कि जो consumer behavior है वो थोड़ा सा discussion-based course है और इसको इस तरीके से पढ़ने के लिए जो मैंने एक वीकली प्लान बनाया हुआ है उस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं. वीक नंबर 1 to 2 में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे बाइंग, हैविंग एंड बीइंग एन इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर और ये जो है वो शुरू होता है पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 30 तक और आपकी जो बुक है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर बाय माइकल आर सोलोमन 11th एडिशन. अच्छा जी, आप लोग इस बुक को ये बड़े अच्छी प्रिंट के अंदर आपका जो इकबाल लाइब्रेरी है न्यू कैंपस में उसमें ये ढेरों बुक्स पड़ी हुई है, राइट? और आपकी ये एक ही टेक्स्ट बुक है जो मैंने लिखी है, एक आपकी रेफरेंस बुक है, वो भी बहुत सारे कॉपीज उसकी पड़ी हुई हैं. तो आपका जब भी चक्कर यूनिवर्सिटी लगे आप वहाँ से उसको इशू करवा सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो ये बुक आपके पास होना बड़ी ज़रूरी है. अच्छा, सबसे पहले पहले 2 वीक के बाद एक क्लास एक्टिविटी है, ये मैं इधर देख रहा हूँ जी, मे बी ओमिटेड ओइंग टू कोविड. पहले मैंने सोचा था कि जी इसको कोविड की वजह से ओमिट कर देंगे, लेकिन ये एक ज़रूरी एक्टिविटी है, इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं. तो एक्टिविटी है क्या, अगर आप क्लास में, जब मैं ये कोर्स क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे वो सारी चीज़ें लेके आते हैं, वो अपना पर्सनल शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं सब लोगों के सामने अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट जो उसने खरीदी होती है. अब चूँकि हम लोग वी कैन नॉट मीट अप, सो वी कैन शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस. अब उसको तरीका क्या है? अब एक्टिविटी इज शेयरिंग एनी ऑफ योर पर्सनल शॉपिंग बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एक्सेसरीज, क्लॉथिंग, फुटवेयर. कुछ ना कुछ हमने ज़िंदगी में ख़रीदा है, ठीक है? अब डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, मैं भी ख़रीदता हूँ, हम मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदते हैं, हमने बाइक भी ज़िंदगी में कभी ख़रीदी होगी, हमने टूथपेस्ट खरीदा होगा, हमने शैम्पू खरीदा होगा, हमने कोई डिटर्जेंट खरीदा होगा, हमने जूते खरीदे होंगे, हमने कपड़े खरीदे होंगे. बिकॉज all of us we are consumers, right? And we buy the products and we consume the products ourselves. तो ऐसे है ना, ये चीज़ें सारी हम खरीदते हैं ना भाई. जी सर. अच्छा जी, अब मैं चेक कर लूँ कि हम लोग हैं 8 इस वक्त ना. वी आर 8 अराउंड 7. अब आप सब लोग क्या काम करेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ. 10 मिनट में आप लोग क्या काम करेंगे, एक पेज निकालें. अब आई डोंट नो आप मोबाइल फ़ोन से इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं,
Is it feasible for you to have a paper and pen? Yes, sir. अच्छा, आप सब लोग फिर एक काम कर लें भाई, आप एक पेपर निकाल लें और उस पे अपना कोई भी एक शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपने कुछ भी ख़रीदा है रिसेंटली, वो चाहे आपने टूथपेस्ट ही ख़रीदी हो, चाहे आपने साबुन ही ख़रीदा हो, चाहे आपने कोई एरियल ही ख़रीदा हो, या चाहे आपने कोई जूता ख़रीदा है, या कोई अभी ठंड वाला मौसम आ रहा है तो आपने कोई जर्सी स्वेटर या कोई चीज़ ख़रीदी होगी, तो जो भी ख़रीदा है, राइट, अब वो आपने कैसे ख़रीदा है, आप कंज्यूमर हैं, आपको उसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई, आपने उसको ख़रीदा कैसे, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अंग्रेज़ी में थोड़ा सा लिख के, 10 लाइनें लिख के मुझे अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का, वो ज़रा एक्सप्लेन करें, राइट। और इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मिनट है। मैं फिर चूँकि हम लोग कम हैं, 6-7 लोग हैं, तो मैं जल्दी से चेक कर लूँगा आपने क्या ख़रीदा और आपने क्या लिखा है, राइट जी। आज सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलें जी, अब टाइम हो गया 10:40, राइट, 10:50 पे। सो आई विल स्टार्ट आस्किंग एवरीबडी how was your shopping experience and what have you really written on your paper, right? So I'm giving you 10 minutes, right? Your time starts now.
राइट जी, आपका टाइम खत्म हो गया भाई। हेलो, जी सर। शबीर सर टाइम खत्म हो गया ना? यस सर, खत्म हो गया है। जी सर, खत्म हो गया। अच्छा राइट जी, अब मैं वन बाय वन लेट मी स्टार्ट आस्किंग यू। शबीर, आप मुझे ये बताइए, आपने रिसेंटली टॉप की थी और आपका जी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? यस सर। बोलिए। I am use soap every day and I purchase after every week or 10 days. Soap is my need because I wash face every day. I am go to shop and I try purchase soap minimum price आप because I want शबीर, आप कौन सा सोप यूज करते हैं, कौन सा खरीदते हैं? Dettol sir. डिटोल सोप यूज करते हैं। अच्छा, सवाल ये Yes. पैदा था, आप डिटोल सोप क्यों यूज करते हैं? Because मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ सर कि उसकी क्वालिटी जो है ना, या मेरे फेस पे जो बाकी सोप्स हैं वो जो है ना यूज़ करता हूँ तो कोई ना कोई उसका इन्फेक्शन हो जाता है। डिटोल सोप से नहीं होता है इसलिए। अच्छा राइट, वन थिंग इज कि जो आपका डिटोल सोप है वो आपके लिए आपका स्किन फ्रेंडली है, राइट? यस सर, यस सर, इसी तरह। आपकी स्किन को वो बेहतर सूट करता है और आप इसलिए खरीदते हैं। अच्छा, वो डिटोल सोप आप यस कहाँ सर। से खरीदते हैं? मैं यहाँ नज़दीक शॉप है, एक ही शॉप है, वहीं से खरीदता हूँ जाके। आप आप हमेशा वहां से क्यों खरीदते हैं? हमेशा क्योंकि सर वो जो आदमी है ना, एक तो ये है कि वो प्राइस ऊपर नीचे नहीं करता, कम प्राइस पे देता है। ठीक है। दूसरी बात वो ट्रस्टी है कि वो अमानतदार और जो है ना सच बोलने वाला आदमी है, इसीलिए मैं उसके पास जाता हूँ रोजाना। अच्छा ठीक हो गया, चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आप उस सोप को कितने दिनों में खत्म कर लेते हैं? सर वीक भी लग जाता है, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। आप उसको अकेले यूज करते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं? अक्सर मैं अकेला यूज़ करता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, शबीर, डेटोल सोप से पहले आप कौन सा सोप यूज करते थे? पहले मैं सेफ गार्ड यूज़ करता था सर। सेफ गार्ड यूज करते थे। यस अ, सर। अच्छा जी, आप आप एंटी बैक्टीरियल सोप हैं दोनों, ये डेटोल भी और सेफ गार्ड भी, ऐसे ही? यस सर, बिल्कुल। आप कोई भी ब्यूटी सोप क्यों नहीं यूज करते? लाइक लक्स है, लाइक और दूसरे सोप से, वो क्यों नहीं यूज करते? वो पहले बताया सर, दूसरे सोप्स जो है ना मेरे स्किन में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इसलिए यूज़ नहीं कर रहा। आप एंटी बैक्टीरियल सोप यूज करते हैं।
यस सर। अच्छा, जब आप एंटी बैक्टीरियल सोप यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं? पहले आप गार्ड, फिर आप डेटोल। क्या डेटोल से आप फुली सेटिस्फाइड है या अभी कोई और भी एंटी बैक्टीरियल सोप आपका खरीदने को दिल करता है? मेरा दिल करता है सर दूसरे शॉप खरीदने के लिए। इससे अभी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो बिल्कुल। ये पिछले ही हफ्ते की बात है, मैंने डेटोल जो है ना उस दुकानदार के कहने पर, क्योंकि जो ट्रस्टी आदमी है उसके कहने पर मैं सुहाना सोप लेकर आया था उससे चेक ठीक। करने के लिए। वो भी जो है ना डेटोल की तरह अच्छा ही है। अच्छा, ठीक हो गया। आप किसी दूसरे अपने बहन को, भाई को, दोस्त को, मोहल्लेदार को कहेंगे कि वो डेटोल सोप अच्छा है, आप उससे अपना फेस वॉश करें? सर आपकी आवाज़ कट रही है, नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप अपने किसी दोस्त को, मोहल्लेदार को, फैमिली मेंबर को कहेंगे कि वो डेटोल सोप से फेस वॉश किया करें? रेकमेंड करेंगे किसी को? सर आवाज़ कट रही है। सॉरी, मैं तो बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ बार बार। आप अपने किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को ये डेटोल सोप रेकमेंड करेंगे यूज करने के लिए? ये सर, मैं यहाँ जो है ना साथ रहने वाले लड़कों से कहता भी हूँ ये जो है वो दुकानदार के बारे में भी और उस डिटोल सोप के बारे में भी कि ये जो सोप है मेरे जल्द के ऊपर तो जो है ना अच्छा असर करता है। राइट। अगर आप लोग खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, उनको कहता भी हूँ मैं। राइट शबीर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। यस सर। और लेट मी टॉक टू माहम खालिक। माहम खालिक, आर यू हियर? Yes, sir. Maham, would you like to express any of your shopping experience which you have done recently? Sorry, sir. Repeat this question, please. Ma'am, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा. We were discussing about the shopping experiences of different people, right? And Yeah. yeah, previously Shabir was sharing his personal experience of buying Dettol soap, right? So would you like to share Yes. any of your personal experience? Okay, sir. I want to share that this product. I am using the Pond's Beauty face wash. Uh, So Pond's face wash आप use करती हैं, हाँ? yeah, yeah, sir. Why do Yes, you sir. use Pond's face wash? Sir, it was very satisfying with myself, or it is mostly usable because of the free of pollutants and different its advantages. That's why I use it. Good. How did you come to know about this face wash? Yes, sir. How did you come to know about this face wash? Because I am come to this product due to different advertisements or there's my friend suggestions. That's why I come to this product. Right. अच्छा, ये बात सुनिएगा, माहम ये कह रही है कि मैंने इसके एड्स देखे थे और मेरी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि मुझे पॉन्ड्स फेस वॉश यूज करना चाहिए. Right, this is important. अच्छा, right. How did you buy that face wash usually? Sir, this type of product I buy from my friend's suggestions because of also my sister's suggestions Hmm. that this product is very nice and you have to use for Wait, your wait, wait, pollutants pause it, or wait. I understand your product is okay and you are okay with your product, but it's not the problem. So where did you buy usually and how did you buy? I mean, do you buy online? Do you visit nearest store or I mean, is there any bag shop I in your area? I visited to the nearest stores. That's why I did it. I Uh, buy it. you, I mean, what's the name of your nearest store usually you buy from? Okay. I bought this product from the Al Fatah. Okay, right. Did you That live did you live in Festabad? Al Fatah store Canal Road पे जो मतलब वो है. Are So you Kohinoor City. you are from Festabad? Yeah? Yes, sir. आप फैसलाबाद से? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. this by you buying from Al Fateh. अच्छा, so आप Al Fateh से ही क्यों buy करते हैं? Sir, actually, because of that, they are nearest to our house. Hmm.
दैट्स वाई वहीं से जाके, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, वहाँ की क्वालिटी अच्छी है और उसका जो है वो बाइंग स्टाइल्स और डिफरेंट कंज्यूमर्स से सेटिस्फेक्शन वहाँ की अच्छी है, इस वजह से मैं वहाँ से बिल्कुल, बिल्कुल। अब यस सर। अब मुझे ये बताइएगा कि जी आप पॉन्ड्स पॉन्ड्स फेस वॉश यूज करने से पहले कौन सा फेस वॉश या कौन सा सोप यूज करती थी? सर, पहले हिमालयन का यूज़ कर रही थी बिकॉज ऑफ दैट, उसके लिए पिंपल फ्री था और उसके अंदर मतलब कम एडवांटेजेस थे, लेकिन उसके बाद जब सजेस्ट हुआ कि पॉन्ड्स जो है उसका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, तो वो जब मैंने वो यूज़ किया तो उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज ऑफ उसके प्लूटेंट्स भी होता है और मुझे काफ़ी इफेक्ट उसका अच्छा नजर आया है। Right. And since when you are using this product? Since last year. In 1 year, right? Yes. अच्छा, आपको मुस्तकबिल करीब में अपना ब्रांड और फेस वॉश आई मीन उसको चेंज करने का सोच रही है? इट्स ओके। सर, अब तो ऐसा कोई सीन है तो सही, बिकॉज ऑफ सीजन चेंज करना पड़ता है, सीजनली चेंज है ना, इस वजह से फिर थोड़ा बहुत सोचेंगे, अभी तो यही रहेगा। राइट, आप यूजुअली कौन सी पैकिंग उसकी बाय करते हैं? स्मॉल वन, द मीडियम वन, द लार्ज पैकिंग? सर, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं मीडियम ही यूज करती हूँ, वरना अगर कहीं ज्यादा पड़ता है तो आप सिर्फ आप मीनिंग ओनली यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट और somebody else is sharing this product with you? माय सिस्टर आल्सो यूज दिस प्रोडक्ट। अच्छा, आप उसको दिन में कितनी बार यूज करती हैं? ओनली 2 टाइम्स सर। अच्छा, आपको एक जो आपका मीडियम पैक है, so how जी long, yeah, how long, I mean, you can use a single product, I mean, how long that 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 runs or that works? It ओके सर। so how many weeks? सर, इट most of the half or मतलब most probably the 1 month ago is use it। Okay, अच्छा, जब वो खत्म Yes। होते हैं जी हम, तो फिर आप उसको क्या करती हैं? जो उसका पैक होता है उसकी क्या ट्रीटमेंट करती हैं आप जब वो मतलब दैट्स अबाउट टू फिनिश? फिर जी सर। सॉरी सर। आपका सोच खत्म होने पे आ जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर जी पैकिंग के साथ आप क्या करती हैं? सर, ऑफ कोर्स उसको ट्रैश बिन में फेंक दूंगे और क्या करूँ। ठीक है जी, वो खत्म हो जाता है, उसको आप अच्छी तरह से खत्म करके ट्रैश बिन में फेंक देती है, सही है? यस सर। तो फिर जी सर। ट्रैश बिन से फिर वो कूड़े वाला आता होगा, वो आपके घर से कलेक्ट करके ले जाता होगा, ऐसे ही? यस। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। आखिरी सवाल ये है कि आप ये फेस वॉश किसी दूसरी अपनी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को या किसी और तीसरे बंदे को रेकमेंड करेंगे? या सर, बिल्कुल। आई सजेस्ट माय ऑल फ्रेंड्स और इवन आई सजेस्ट टू माय नीस, लिटिल नीस, टू यूज इट। अच्छा भाई जी, सब लोग सुनिएगा, अब जो माहम का शॉपिंग एक्सपीरियंस अबाउट द फेस वॉश पॉन्ड्स, उसमें मुझे क्या समझ आई, मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूँ। एंटायर ऑफ एक्सपीरियंस हुआ ये है कि माहम पहले कोई और हिमालयन कंपनी का फेस वॉश यूज़ करती थी। फिर उन्होंने एड्स देखे टेलीविज़न पे और उनको किसी फ्रेंड ने भी कहा कि पॉन्ड्स का फेस वॉश भी ट्राई करना चाहिए, मुमकिन है कि वो आपकी स्किन को बेहतर सूट करे। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ हमने क्या सीखी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है दैट इज गोना बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक एड दैट इज ऑन एयर ऑन टेलीविजन, वन थिंग। Secondly, consumer behavior that's going to be influenced by your friends recommendation. दो चीजें हमने सीखी कि कंज्यूमर बिहेवियर दो तरह से इन्फ्लुएंस होता नजर आ रहा है माहम खालिक का, कि टेलीविजन के ऐड से ये इन्फ्लुएंस हुई और उसके बाद किसी दोस्त ने बताया, वहां से इन्फ्लुएंस हुई। अच्छा, फिर तीसरी चीज मुझे ये मिली है कि ये इसको अल फतह से बाय करते हैं। अल फतह एक अच्छा बड़ा स्टोर है, राइट? अच्छा, फिर अल फतह से ये क्यों बाय करती है? क्योंकि ये नजदीक है। एक और देखिए, कंज्यूमर अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए और अपनी क्वालिटी को देखते हुए किसी भी नियरेस्ट स्टोर से बाय करता है। अब अल फतेह ने इनका कंज्यूमर बिहेवियर को आसान कैसे बना दिया? अब अल फतेह एक just quite bigger store, right? All of the brands are available in Al Fateh, I mean under one roof. और वहाँ ये कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में जाती होंगी या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाती होंगी और वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के
फेस वॉश लगी हुई है, राइट। ये इधर उधर नहीं देखती, स्ट्रेट जाती है और पॉन्ड्स के कॉर्नर से जाके पॉन्ड्स का फेस वॉश उठा लेती है, राइट। उसके बाद इसको यूज करने के तरीके पे हमने बात की। इन्होंने कहा जी मैं इसको ट्वाइस अ डे यूज करती हूँ, लाइक ये जो सुबह उठती होंगी तो ये उसको यूज करती होंगी, और मुमकिन है दोपहर में, शाम में, जब उनको स्किन अपनी ज्यादा ऑयली लगती होगी या कुछ ऐसा लगता होगा, या रात सोने से पहले वो अपनी स्किन को क्लीन कर लेती होंगी। सो दिस वाज यूजिंग क्राइटेरिया, दिस वाज द यूजिंग टेक्निक, दिस वाज द यूजिंग मेथड कि आप प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि आप जब when it is about to finish, so how do you discard this product? Kaji, when it is finished, I usually roll it back and throw it into the trash bin, और फिर वो जो है कूड़े वाला आएगा और उसको उठा के ले जाएगा। This is how she disposes the product, you know, after use की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने लास्ट में पूछा, if you are one of the satisfied consumers, so would you like to recommend it to your friends? And she said, yes, of course I would recommend, right? So this is all about consumer behavior. Are you understanding me? Yes, sir. अच्छा, अब ये तो प्रोडक्ट हमने अभी दो एक्सपीरियंस डिस्कस किए, जिसमें हमने सोप और उसका फेस वॉश को डिस्कस किया। अच्छा, लेट्स discuss some bigger product, like some electronic product. Let me ask you, everyone, has somebody bought, you know, a mobile phone recently? Anyone of you? भाई लोगों, किसी ने मोबाइल फोन खरीदा हो? सर मैंने। कौन जी? कौन सा मोबाइल फोन खरीदा? कौन बोला? सर नुमान। जी नुमान शाहिद, आप सिर्फ बताइएगा भाई, आपने मोबाइल फोन कौन सा खरीदा? सर मैंने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ना एक फोन खरीदा था ओप्पो का, ओप्पो A1K। अच्छा जी। तो सर मुझे ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, क्योंकि वो ये ब्रांड ना पहले से यूज कर रहा था। तो मुझे जो मेरे पास पहले फोन था ना, मुझे स्टोरेज का इशू था उसमें। तो मेरा जो मेरा डाटा था वो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जो फोन की स्टोरेज होती थी ना वो बहुत कम होती थी। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ओप्पो के फोन लो, क्योंकि इनमें जो स्टोरेज स्पेस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो दूसरे फोन से बहुत बेहतर होती है। उनके ग्राफिक्स और दूसरे गेमिंग कार्ड्स वगैरह भी ना दूसरे फोन से अच्छे होते हैं। तो सर मैंने उसके कहने पे अपनी जो मेरे घर के पास जो मोबाइल फोन की मार्केट थी, तो मैंने उधर से लिया ये। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मैं इसे यूज कर रहा हूँ। एक मिनट, आपने उसको गूगल नहीं किया, यूट्यूब नहीं किया? सर मैंने ये वाला ओप्पो का फोन लेने से पहले मैंने गूगल भी किया था, और जो नीचे गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो नीचे उसके अंदर रिव्यूज आ रहे थे, यानी कि जिन लोगों ने पहले ये यूज किया हुआ था तो उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हुए थे। हाँ ठीक हो गया, सही है, आगे चलो। तो जब सर मैंने इसे अभी मुझे 2 से 3 हफ्ते हो गए इसे यूज करते हुए, तो अभी मैं सेटिस्फाई भी हूँ। और जो एक मिनट, प्राइसिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं था इसको डिसाइड करने में? प्राइसिंग सर जी सर इसमें प्राइसिंग का ये था कि जितना मेरा बजट था ना, ये मेरे बजट के बिल्कुल एन मुताबिक मीट कर रहा था। यानी कि अगर मेरे पास 20,000 रुपए थे, तो ये मुझे पूरे 20 का ही मिला है। तो मेरा बजट भी मुझे हाई नहीं करना पड़ रहा। एक मिनट, एक और चीज, जब आप 20,000 में फोन खरीदने गए और ओप्पो वाज वन ऑफ द चॉइसेस, हाँ? ओप्पो के अलावा कोई और भी चीजों के साथ आपने कंपेयर किया था इसको? सर मैंने इसे कंपेयर नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ही लीडिंग ब्रांड्स हैं, एक ओप्पो और एक सैमसंग है। वो मैं पहले यूज कर रहा था, तो उसमें मुझे इश्यूज थे, तो फिर इसलिए मैंने कंपेयर ही नहीं किया। नहीं, इतने पैसों में इतने फीचर्स के साथ किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं किया? नो सर मैंने किया नहीं, क्योंकि जो मैं इससे पहले वाला फोन यूज कर रहा था मुझे उसमें इश्यूज थे, तो इस वजह से मैंने कंपेयर नहीं किया। मैंने मेरे भाई के सजेस्ट करने पर मैंने सीधा ये वाला फोन लिया। गूगल पे इस पे रिव्यू मैंने कर लिया था, इसकी मैंने सारी स्टोरेज सेटिंग। राइट, ठीक है। अब आप इसको यूज कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से? हाँ सर मैं यही कहूँगा कि मैं इसे रिकमेंड करता हूँ हर किसी को, क्योंकि ये एक अच्छे बजट में ना ये हमें फोन मिल रहा है। तो अगर किसी ने लेना हो इसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये फोन जरूर एक दफा ट्राई करेगा। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। आपका डेली बेसिस पे कितना स्क्रीन टाइम होता है? आप आज इस मोबाइल पे लगाए? आजकल तो सर जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो रोजाना हमारी 8:30 से लेकर 1 बजे तक क्लास
क्लासेस होती हैं, तो वो तो ये यूज होता है। उसके बाद जब भी मैं फ्री टाइम में, रात के टाइम भी ये यूज हो जाता है, तो ठीक। काफी यानी कि मैं बहुत यूज करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये इसको कितना अर्सा और यूज करेंगे, लाइक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कब तक? सर मैं इसे मेरा है कि मैं इसे ना अभी 8 से 10 महीने और यूज करूंगा। तो अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे उम्मीद भी यही है कि जो जितना अर्सा मैं अब इसे यूज करूंगा, मैं सेटिस्फाइड ही रहूंगा। फिर 10 महीने बाद हम क्या अगर करेंगे? अगर 10 महीने बाद अगर मुझे कहीं फील हुआ कि नहीं, अब मुझे इसमें इश्यूज आना स्टार्ट हो गए या इसमें कोई इश्यूज है, तो फिर मैं चेंज कर लूंगा। बट आप क्या करेंगे इसके साथ? पहले मुझे आवाज नहीं आ रही है। कर लूंगा, लेकिन ब्रांड यही रखूंगा अपना। पहले आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आप इसको क्या करेंगे? सर मैं बोल रहा था कि अगर 8 से 10 महीने बाद मुझे ये तब्दील करना पड़ा ना, तो मैं ये फोन तो चेंज करूंगा, लेकिन ब्रांड में अपना ओप्पो ही रखूंगा। नहीं, आप फोन कैसे चेंज करेंगे, इस फोन का क्या करेंगे? सर जब इसमें इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर 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 आना स्टार्ट हुए तो मैं करूंगा, अगर आना नहीं स्टार्ट हुआ तो जब तक इसमें इशू नहीं आएगा, अगर ये क्या पता साल 1.5 साल तक मैं यूज करूँ। ठीक है भाई, मान लिया इश्यूज आने शुरू हो गए, 10 महीने बाद इश्यूज आने शुरू हो गए, ये नहीं आए, हाँ, तो उसके बाद आप ओके। चेंज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? किसी छोटे भाई को दे देंगे, बेच दे देंगे, फोन दे देंगे नहीं सर, मैं ये बेच दूंगा। और उसको बेच देंगे, राइट? यस सर। अच्छा, बेच के दूंगा। चलो जी, आप सब लोगों ने, अगर सब लोगों को आवाज़ आ रही है, तो आपने नुमान का शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि नुमान एक कंज्यूमर है, उसने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और उसने उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदा, मेरी नीड्स था, हाँ, तो यस। वो सारा शॉपिंग एक्सपीरियंस आपने सुना, उसमें जो मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूँ, कि जनाब सैमसंग ये यूज़ कर रहे थे, सैमसंग के साथ इनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा नहीं था। इनको किसी दोस्त ने, भाई ने बताया ओप्पो का, मैंने ओप्पो को गूगल किया, यूट्यूब किया, उसके फीचर्स देखे, इनका थोड़ा सा जहन बना कि ओप्पो, फिर ये किसी मोबाइल आउटलेट पे गए, वहाँ से उन्होंने ओप्पो फ़ोन निकलवाया, देखा, चली थी, 20,000 रुपये इनका बजट था, प्राइसिंग भी इनको अपील कर रही थी, किसी की रिकमेंडेशन भी थी, चीज़ों को गूगल करके ये ऑनलाइन रिव्यूज़ भी ले चुके थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ओप्पो बाय कर लिया। अब ओप्पो ये अच्छा रेगुलर 2-3 हफ्ते से यूज़ कर रहे हैं और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है इनका, उसकी बैटरी टाइमिंग भी ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी ठीक हैं, उसका स्पीकर भी ठीक है, उसका माइक भी ठीक है, उसका इंटरनल मेमोरी भी अच्छा है, उसका कैमरा फ्रंट बैक सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो ये बड़े खुश हैं उससे। ये कहते हैं कि मैं उसको 8-10 महीने चलाऊँगा और 8-10 महीने के बाद अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होगा तो मैं इसको चेंज करूँगा। अब चेंज करने की उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसको मार्केट में लेके जाऊँगा और जो भी मुनासिब पैसे लगेंगे मैं इसको बेच दूँगा और पैसे डाल के मैं एक और फ़ोन ले लूँगा, राइट? अब ये experience is different. I mean, when you buy a mobile phone, your experience that could be different from buying the Dettol soap, from buying a face wash. ठीक हो गया? अब अभी भी आप लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर बड़ा सिंपल है। आप लोग एक कम एनर्जी लगा लेते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, राइट? अब कोई अगर आप यूजुअली जब कोई जूता खरीदते हैं, खवातीन जब कोई अपना वॉलेट या पर्स खरीदती हैं या कोई परफ्यूम खरीदते हैं, तो आप लोग अगले दुकान वाले को वक्त नहीं डाल देते, हाँ, आप जाते हैं और उसके रैक पे अगर आपको 150 परफ्यूम लगा होता है तो आप 150 परफ्यूम पहले ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं, आपको अपनी नीड का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, अगर आप खुद के लिए बाय कर रहे हैं, आप किसी दूसरे के लिए बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छा खासा रौला और स्यापा है कोई भी एक प्रोडक्ट को बाय करना, राइट? तो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल अबाउट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, selecting the right product, buying the right product, using the right product, right? और after using उसको discard करने का तरीका, dispose करने का तरीका, all this comes under consumer behavior, right? And one thing which is very important, that consumers, they differentiate themselves from one another. Noman is different from Maham, Maham is different from Saba, Saba is different from Alina, Alina is different from Farhan, Farhan is different from Aliza, right? क्यों ये डिफरेंट है? हर बंदे का चीज को बाय करने का, देखने का बजट उसका डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसके पास पैसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट एरिया में रहता है, राइट?
उसकी ज़रूरत डिफरेंट है, उसकी मोटिवेशन डिफरेंट है उस प्रोडक्ट को बाय करने की, उसका तरीका डिफरेंट है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, उसको डिस्पोज करने का तरीका डिफरेंट है। वही सो कंज्यूमर एक बिगेस्ट मार्केट है दुनिया की। हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ बिगर कंज्यूमर मार्केट, कि यार अमेरिका फ्रेंडशिप करता है इंडिया के साथ, अमेरिका हमारे साथ नहीं करता बिकॉज इंडिया एक बड़ी मार्केट है, राइट। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो चाइना की, तो चाइना इज बिगर मार्केट, राइट। तो ये बिगर मार्केट क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर हायर देयर, राइट। फिर अगर हम फैसलाबाद की पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स में बात करें तो फैसलाबाद एक मार्केट है, कराची उससे एक बड़ी मार्केट है, लाहौर कराची से कम और फैसलाबाद से बड़ी मार्केट है, राइट। पिंडी इस्लामाबाद जो ट्विन सिटीज है वो एक और डिफरेंट मार्केट है। तो हर मार्केट का क्राइटेरिया, हर मार्केट में प्रोडक्ट्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग जरा डिफरेंट है। कुछ गाड़ियाँ फैसलाबाद में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, कुछ गाड़ियाँ इस्लामाबाद में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ठीक है। कराची वाले किसी एक गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको वो वाली गाड़ी अच्छी लगती है। सो दिस इज हाउ के कंज्यूमर बिहेवियर वेरी करता है एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर पे। और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनीज जब तक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं करती तो वो तब तक कंज्यूमर की नीड्स को उस तरीके से इनकॉर्पोरेट करके वो अपने इलेक्ट्रॉनिक एड्स ही बना सकती और अपना प्रोडक्ट का पोर्ट्रेल उतना अच्छा मुमकिन नहीं हो सकता जब तक वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं करे। अब कंज्यूमर बिहेवियर तो चेंज होता जाता है, राइट। आज से 10 साल पहले हम जब मोबाइल फ़ोन, पहली बात है कि मोबाइल फ़ोन इतने कॉमन नहीं थे, 15 साल पीछे चले जाएं, चले मोबाइल फ़ोन कॉमन नहीं थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों को ऑनलाइन जाके देखना, सर्च करना और उसको खरीदने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब क्या करते हैं, कोविड ने आके आपका सारे का सारा शॉपिंग एक्सपीरियंस डिजिटल नहीं कर दिया। Entire your shopping attitude and shopping behavior that has been shifted over the media, right? You're using everything, you're buying everything via your mobile phone. If you have a laptop, if you have internet, if you have mobile phone, so you can buy anything. आप घर बैठे भाईजान अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से चीजें मंगवा लेते हैं, ठीक है। दराज अगेन वेरी फेमस। तो हर बंदे ने आजकल अपनी दुकान जो है वो फेसबुक पेज बनाया हुआ है और उसने अमेजोन पे वो काम कर रहा है और उसने अपनी दुकान ऑनलाइन खोली हुई है, तो वहां से अब चीजें बाय कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ द कोविड, this is how the lockdowns, they have entirely changed the shopping behavior. So this is the impact of technology on consumer behavior. So this was one activity that we can do very well in physical classes, So the time is about to finish. हमारी क्लास चल रही है या खत्म हो गई? हमारे 40 मिनट्स पूरे तो नहीं हो गए? कितना टाइम रह गया? हेलो, क्लास चल रही है? यस सर, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे ना कि कितना Yes. नहीं, ये तो यार 55 कितना टाइम हो गया? 55 मिनट्स हो गए सर। ये 40 मिनट्स का होता है वैसे सेशन, उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। ये एक्सपायर क्यों नहीं हुआ? ये तो 55 मिनट का हो गया। यस सर, एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, अच्छी बात है, हमने खत्म कर दिए। अच्छा भाई लोगों, मैंने आप लोगों को वो भेज दी है, इसकी कोर्स ऑफ टाइम मैं इसको उधर भी शेयर करूंगा। और ये डिस्कशन बेस की होता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कुछ चीज़ें हैं वो, लेकिन कुछ सिस्टम इस तरह से करें कि यार कुछ क्लास बड़ी बने, लाइक उसमें 2 सेक्शन बेशक मिल जाएं और एक अच्छी ज़बरदस्त हम क्लास करें जिसमें मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं, कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं और फिर उसको हम कर सके, रिकॉर्ड कर सके, फिर हम उसको अवेलेबल कर सकें आपके लिए। कुछ इस तरह से हो जाए। 4-5 बच्चों के साथ क्लास करने का, पढ़ने को मजा नहीं आता। सर इसमें ना जब आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था ना हमारा, तो आपने बोला था कि मेरे पास 2 सेक्शंस हैं तो आपने एक टाइम कर लें। तो सर जो दूसरे सेक्शन के सीआर होंगे ना, हम उनसे बात कर लेंगे कि ताकि हम एक ही टाइम पे रख सकें। अगर एक टाइम पे नहीं तो कम से कम जो क्लास का टाइम उसमें सारी क्लास हो मीटिंग में। हाँ, कुछ हो ना, फिर वो मजा फिर ही आता। ओके सर, ग्रुप में आज बात कर लूंगा मैं। तो जिस टाइम आपका वो सीआर किधर गया? सर वो सीआर नहीं आया तो उसकी जगह फिर मैं सीआर, एक्टिंग सीआर हूं। अगर नहीं आया राइट नोमान, आप मुझे टेक्स्ट भी कर दीजिएगा अपना मोबाइल। ठीक है सर। चलिए राइट जी, have a good time. I'm going to wind up the class here. Thank you. सर अटेंडेंस हो गई? मिस हो गई।